गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों. आई एम लखन कुमार, योर फिजिक्स टीचर. Today we will discuss about the basic mathematics for physics. Okay, it is the most important content which we have to read about this. So let we read about it. Mathematics is the tool of physics. A good knowledge and applications of the fundamentals of the mathematics which are used in physics helps in the understanding the physical phenomena and their applications. So mathematic tools or mathematic formulas play most important role to understand the physics. So it is very important. Before read the physics, we have to see about it. Okay, so let we read about it. First, quadratic equation. Quadratic equation and its solution is very simple. A second degree equation is called quadratic equation. Okay, what do you mean by second degree equation? You can see here the equation is given here, and x is variable, and the maximum power of x is 2. So it is called second degree equation. If x has maximum power 3, then it is called third degree equation. If x has maximum power 1, then it is called first degree equation. Clear? So quadratic equation is also called second degree equation. Clear? In this equation, a, b, c are constant and x is a variable quantity. Okay, a, b, c both three are constants and x is variable. Constant, that means a, b, c are constant, that means 1 2 3, 1 by 2, 3 by 2, etc. Okay, these are the constant, and the solution of quadratic equation is this: x is equals to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. Clear? We can easily find out the abc value in this equation by comparing by ideal equation. Okay, in this solution we have two values, because plus and minus, according to plus and minus, first value is equals to minus b minus root b square minus 4ac upon 2a. It is your first equation, first solution. And second equation, second solution is minus b plus root b square minus 4ac upon 2a. That is your second solution. Okay, and because it is the second degree equation, it has two solution. अगर ये थर्ड डिग्री इक्वेशन होता तो 3 सॉल्यूशन होता, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होता तो 1 सॉल्यूशन होता. क्लियर? नेक्स्ट, binomial theorem. It is new for you. Binomial theorem, in mathematics you read about it. Okay, if you have, according to this theorem, 1 plus x whole square power n is equals to 1 plus nx plus n minus 1 upon factorial 2 x square plus n minus n minus 2 x cube upon factorial 3 plus dash 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 dash. First of all, we can see here factorial 2 or factorial 3. What do you mean by factorial 2, factorial 3? We can write it as this or this. Both are the symbol of factorial 2. Clear? तो factorial 2 का मीन ये होगा कि 2 से पहले कितने न्यूमेरिक वर्ड्स हैं, 1 and 2. So we can write here the extended form of it, that is 1 multiply 2. Okay, जितने नंबर तक है. अगर फैक्टोरियल 3 है तो 1 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 3. अगर 4 है तो 1 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 4. जितने भी न्यूमेरिक्स होंगे वो सभी का मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल in numerics. Okay, next one, where x mod is less than 1. X mod, that means doesn't matter it is positive or negative, but the value of x should be less than 1, like 1 by 2, 3 by 2, 0.2, etc. Okay, sorry, 1 by 2, 1 by 3, 0.2, etc. we can use here. Okay, 3 by 2 नहीं हो सकता because it is greater than 1. n is any negative integer और एनी फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव. एन जो है वो या तो नेगेटिव नंबर होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा या फिर क्या होगा, कोई फ्रैक्शन हो सकती है पॉजिटिव और नेगेटिव. क्लियर? इफ एक्स लेस देन 1, देन द टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड. अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर एक्स की वैल्यू बहुत ही छोटी है एक्स से, तो हम उसकी हायर पावर्स को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट. तो इन सभी स्टेप्स को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट. तो ओनली द सोल्यूशन ऑफ इट 1 प्लस एन एक्स.
क्लियर। नेक्स्ट वन, बायनोमियल थ्योरम हम यूज़ करेंगे 11th में ही, सो मतलब ये यहाँ पर मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वन इज logarithm. Logarithm is also a new topic for you. It is also an operation in mathematics like plus, minus, multiply, divide, root, etc. Okay, it is the new operation in mathematics. What do you mean about the logarithm? If a to power x is equals to m, then x is called the logarithm of m to the base a and is written as log am. Thus if a to power x is equals to m, okay, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, log पावर बेस a, इसको बेस a बोलते हैं, एंड m इज इक्वल्स टू x। क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो ना। जैसे हमारे पास है 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 है, और हमने क्या करना है 16 से ये पावर पता करना है कि 16 जो है वो 2 की कितनी पावर होगी, क्वेश्चन मार्क हियर। तो अगर इस क्वेश्चन मार्क को कैलकुलेट करना है देन वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम हम कैसे करेंगे कि हमने किसका निकालना है 16 का, तो 16 इज द फंक्शन, ओके, एंड किसके रिस्पेक्ट में निकालना है 2 के रिस्पेक्ट में, 2 इज द बेस एंड इट इज 4 पावर। क्लियर। सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू इट, ओके। जैसे 2 रेज टू पावर 4 हमें पता है 16 होता है, तो अगर हमसे ये पूछा जाए 2 टू पावर वट इज इक्वल्स टू 16, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का 2 बेस के लिए लॉगरिथम निकालेंगे। क्लियर। दैट इज़ वेरी सिंपल। हमने इसका रिवर्स प्रोसीजर करना है। जैसे हम किसी की पावर का सॉल्यूशन निकालते हैं, वैसे हमने उसका रिवर्स प्रोसीजर करना है कि सॉल्यूशन इज गिवन देयर एंड बेस इज गिवन देयर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द पावर्स, ओके। तो इट इज़ वेरी सिंपल। एज इट इज़ 3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 27। अगर हमें ये पता लगाना है 27 जो है वो 3 की कितनी पावर होती है, देन वी हैव टू टेक द लॉगरिथम ऑफ 27 विद रिस्पेक्ट टू यानी बेस ऑफ 3, okay, that is answer 3. Clear. Logarithm is a simple. Now the some important formulas related to logarithm, okay, standard formulas are also called log e base। ये e जो है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो log e base, इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिटन एज ln, स्मॉल ln लिखा होता है ना, कहीं पर ln लिखा होगा, तो दैट इज़ नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। आगे हम कभी कर लेंगे log e mn, ओके। वी हैव 2 फंक्शंस m एंड n, देन व्हाट वी हैव टू राइट, ओके। हम इसका क्या चीज़ बना सकते हैं, तो इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, log को अलग अलग लिखेंगे और बीच में एडिशन ऐड कर देंगे। अब देख रहे हो ना कि मल्टीप्लाई है तो बीच में एडिशन आ गया, बट log की अलग अलग की वैल्यू निकाल के, किसका m का अलग और n का अलग। इसी तरीके से अगर डिवाइड है तो माइनस आ जाएगा बीच में, तो न्यूमिनेटर पहले आएगा लॉग के साथ और डिनोमिनेटर बाद में आएगा, बीच में माइनस। क्लियर। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी पावर n है, ओके, लॉग के अंदर, तो ये पावर जो है वो जंप करके मल्टीप्लाई में आ जाएगी विद लॉग ई एम, ओके, यानी आगे आ जाएगी। क्लियर। इसी तरीके से log ई एम है, हम इसका बेस चेंज करना चाहते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, उस बेस का वैल्यू जो नया बेस बनाना चाहते हैं उसका गिवन बेस में हम वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, और नए बेस में हम फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दैट इज दीज आर द 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज फॉर द लॉगरिथम्स। नेक्स्ट वन, 2 सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। मैंने बात की थी अभी कि जो 2 सिस्टम कौन कौन से हैं। एक तो नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में हमारे पास बेस क्या होता है, ई होता है, एंड ई इज़ द constant quantity that has the fixed value 2.7182, okay, 2.7182 is called natural logarithm, okay। जहाँ पर भी log e लिखा होगा that means it is the natural log। ln भी लिखते हैं इसको, okay, सिंपली अगर log भी कहीं लिखा है तो हम उसको natural log ही कंसिडर कर रहे हैं। कॉमन लॉगरिथम का मतलब क्या है, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू द बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, ओके। अगर हमारे पास 10 बेस है तो उसको कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जो भी लॉग की टेबल भी होगी, आप जैसे साइन की टेबल होती है वैसे लॉग की टेबल भी होती है,
तो उसमें जो भी वैल्यूज़ गिवन रहती है वो अकॉर्डिंग टू 10 बेस होती है। क्लियर? हम इसको लिखेंगे log 10 बेस। ओके, इफ़ वी कैलकुलेट द 100 देन वी नो दैट 100 10 टू द 100 होता है, तो दैट इज इक्वल टू 2। ओके, आपको 10 टाइम्स 10 2 टाइम्स क्या होता है 100 होता है ना, तो 10 रेज़्ड पावर 2 आ गया। इट मीन्स 2 इज़ द आंसर। मैंने बताया था पावर्स जो होती है वो आंसर बनती है इसमें। नेक्स्ट वन, कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉगरिथम टू कॉमन लॉगरिथम। अगर हमारे पास कहीं पर नेचुरल लॉगरिथम गिवन है और हमें इसको कॉमन लॉगरिथम में कैलकुलेट करना है, क्योंकि सभी जो वैल्यूज़ हैं वो कॉमन लॉगरिथम यानी 10 बेस में गिवन रहती है, तो हम क्या करेंगे? तो दैट इज़ वेरी सिंपल। हम इसको इस तरीके से करेंगे, log ई एक्स इज इक्वल टू log, मैंने बताया था एक मेथड ना कि अगर हमें बेस चेंज करना है तो सबसे पहले उस बेस में हम जिस बेस नया बेस बनाना चाहते हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, हम जो नया बेस बनाना चाहते हैं उसकी वैल्यू इस बेस में गिवन बेस में कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई नया बेस लगा देंगे और फंक्शन लिख देंगे। क्लियर? अब ये देख सकते हो इट इज़ अ फिक्स क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि ई इज़ अ कांस्टेंट 2.71 और 10 इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो इट इज़ अ फिक्स क्वांटिटी दैट हैज़ वैल्यू 2.303 अप्रॉक्स। ओके, सो वी ओनली, ओके, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टूड। ओके, मतलब समझने के लिए है ये कि हमें सिर्फ ये डायरेक्टली करना है। ओके, 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई 2.303। क्लियर? नेक्स्ट वन, नाउ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स ऑल्सो। ओके, क्योंकि हम हर फॉर्मूले में कहीं ना कहीं हम मतलब ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रीड करने से पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द एंगल। क्लियर? तो एंगल हमें पता ही है, कंसिडर ए फिक्स लाइन स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, लेट अनदर स्ट्रेट लाइन ओ ए कॉल्ड रिवॉल्विंग लाइन। ये फिक्स लाइन हो गई और एक रिवॉल्विंग लाइन है। तो रिवॉल्विंग लाइन जो है दैट ओ एक्स रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ओके, टेक्स अ पोजिशन ओ ए, एंटी क्लॉकवाइज यानी इस साइड पे रोटेट कर रही है, इस साइड पे रोटेट कर रही है, तो इट मीन्स इट इज़ अ ओ ए पोजिशन। अब ओ ए पोजिशन आ गई, द एंगल इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ revolution that the revolving line OA undergoes in passing from its initial position to the final position। ये initial position हुई, final position में पहुँच के ये कितना एंगल क्रिएट करेगी, that is the angle। okay, here for figure given below, angle covered by revolving line OA is theta equals to AOX। AOX, clear? And angle AOX is positive if it is traced out in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में इसको ट्रेस कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा और इस डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे तो नेगेटिव। क्लियर? यानी राइट टू लेफ्ट जाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो नेगेटिव। क्लियर? ट्रेस करने पे है ना, किस तरीके से ट्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ओके, अब हमारे पास सिस्टम भी है कुछ एंगल मेजरमेंट के, वो क्या होते हैं, एक तो है सेक्साजेसिमल सिस्टम और सेकंड वन इज सर्कुलर सिस्टम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्साजेसिमल सिस्टम, इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये आपको पता ही है कॉमन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये आपके लिए न्यू हो सकता है, 60 आर्क मिनट भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आर्क मिनट। ओके, तो कहीं पर आर्क मिनट भी मिलेगा और इट इज़ द सिंबल ऑफ आर्क। ओके, 60 पर सिंपल ऐसे कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्क मिनट। ओके, इफ वी हैव 2 सिंबल्स देन इट इज कॉल्ड आर्क सेकेंड्स। ओके, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड्स। क्लियर? इन सर्कुलर सिस्टम डिग्रीज कन्वर्टेड इनटू रेडियंस। Pi radians is equals to 180 degree is equals to 2 right angles. We know that 290 degrees in 180 degree. Clear? तो pi radian is equals to 180. It is called circular system. One right angle is equals to pi by 2 radians. आपको पता ही है, इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा तो pi by 2 radians is equals to 1 right angle. Clear? तो 2 systems are there. Next one, trigonometrical ratio. Okay, consider trigonometrical ONM in 4 quadrants as shown in below. Okay, अब ये ट्राइंगल जो है ONM ये हमने 4 क्वाड्रेंट्स में देखा है नीचे, है ना।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा होता है जो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, जो कि हमें मैंने बोला था एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, तो इट मीन्स यहाँ से एक्स से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज वाई की तरफ चलेंगे, दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये ट्राइंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये ट्राइंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। तो दीज 4 क्वाड्रेंट्स एंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैज़ अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट वैल्यूज़। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल। ओके, ये आपको पता ही है, जैसे लास्ट में मैं दिखाता हूँ। इसमें क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू थीटा। ये रहा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं दैट इज टेन थीटा। ओके, और अगर हम करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टेन थीटा आ जाता है। और इसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेनस करते हैं दैट इज कॉस थीटा। क्लियर? तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या था। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, एंड इट इज कॉल्ड साइन ऑफ थीटा। क्लियर? साइन ऑफ थीटा। और ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज कॉल्ड कॉस थीटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोसाइन ऑफ थीटा। इसको बोलते हैं साइन ऑफ थीटा, इसको बोलते हैं कोसाइन ऑफ थीटा। साइन थीटा को साइन ऑफ थीटा भी बोलते हैं और कोस थीटा को कोसाइन ऑफ थीटा। अब इसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंट ऑफ थीटा। और अगर हमारे पास फर्स्ट वाले का अपोजिट है यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है तो कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं कोसेंट ऑफ थीटा। और इसी तरीके से कोस का जस्ट अपोजिट है हमारे पास यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस दैट इज कॉल्ड सेक थीटा, इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ थीटा। और इसी तरीके से हमारे पास अगर 10 का अपोजिट है तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, कॉट थीटा होगा, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कॉस थीटा, इट इज कॉल्ड कोटजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, कोटजेंट ऑफ थीटा। ओके, कोटेंजेंट भी बोल सकते हैं, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। These ratios are called trigonometrical ratios. Okay, 6 हो गए, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। Clear? Next one. Next slide is this. Important relation in trigonometry. तो trigonometry में सबसे पहले है sin थीटा और cosec थीटा जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। It means cosec थीटा is equals to 1 upon sin थीटा और sin थीटा is equals to 1 upon cosec थीटा, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, sec थीटा और cos थीटा। कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर? एक ये सिंपल फॉर्मूला जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से एक ये भी सिंपल फॉर्मूला जो आपने 10th में पढ़ा है, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से ये है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है। क्लियर? इसी तरीके से साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं 6, उनके क्या होते हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग सिंबल होते हैं। लाइक दिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो होते हैं दीज आर पॉजिटिव एंड अदर 4 आर नेगेटिव। क्लियर? एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेंजेंट यानी टेन थीटा और कोट थीटा, को टेंजेंट यानी कोट थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 जो होते हैं वो नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसाइन यानी कॉस थीटा और सेकंड यानी सेक थीटा, वो जो होते हैं हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 क्या होते हैं, नेगेटिव। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है ताकि हम आगे के एंगल्स को कैलकुलेट कर सकें इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्लियर? इट इज़ द सिंपल टेबल, यहाँ 90 डिग्री तक तो जो है आपने 10th में पढ़ा है। ओके, इसके बाद की टेबल भी आप देख लीजिए जो कि 3 के लिए गिवन है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ओके, ये आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अलाइन एंगल्स। ओके, मतलब एंगल्स के साथ किस किस तरीके से होते हैं वो देख लीजिए। अगर एंगल माइनस में है साइन के साथ तो जो माइनस है वो आउटसाइड आ जाएगा।
अगर कोस के साथ माइनस में है तो डजेंट मैटर, इट इज़ प्लस कॉस थीटा। और टेन के साथ भी वही रिएक्ट होगा जो साइन के साथ हुआ, माइनस है तो माइनस आउटसाइड आ जाएगा। ये चीज़ याद रखना, ओके। तो साइन 90 माइनस थीटा, इट मीन्स 90 है, यानी 90 का मल्टीपल्स है, 90 है, ठीक है। 90 का कौन सा ओड मल्टीपल्स होना चाहिए, 91 जा 90, 92 जा इवन मल्टीपल हो गया, 93 जा 270, ओके। तो जब भी यहाँ पर एक क्या आएगा, ओड मल्टीपल आएगा, तो हमारे पास क्या होगा, वो नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक को सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर देखो 90 माइनस थीटा, इट मीन्स साइन अब कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, बट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये बताएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट हम देख लेते हैं। तो क्वाड्रेंट का वैल्यू जो है वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। इस क्वाड्रेंट के अंदर आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि आप ऐसे बनाते हो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 90 से कुछ भी लेस देन है तो वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास आगे देख लो, कोस 90 माइनस थीटा तो वो भी प्लस साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बट ये चेंज होगा 90 के अकॉर्डिंग, इसी तरीके से 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा। अब इसके अंदर देखोगे तो 90 प्लस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में 90 तो है, इसका मतलब ये कन्वर्ट तो होगा कोस में, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए होल वैल्यू इज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर देखोगे जब अपने कोस 90 प्लस थीटा, तो हमारे पास देख सकते हो कोस 90 प्लस थीटा जो है वो हमारे पास होता है 90 की वजह से साइन में कन्वर्ट हो गया, बट यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, नेगेटिव साइन थीटा आएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, साइन और कोसेक की पॉजिटिव होते हैं ना। इसी तरीके से ये है, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, कोट में कन्वर्ट तो हो जाएगा बट नेगेटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसी तरीके से 180 का है, ठीक है, 270 का है, 270 में भी देख लीजिए, 180 में तो चेंज ही नहीं होगा, पहली बात तो ये, ठीक है। और 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट, और इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसी तरीके से 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, बट कोस 180 आ गया, क्योंकि ये देख लो इवन मल्टीपल है 90 का, तो ये चेंज नहीं होगा, कोस आएगा। बट नेगेटिव किस लिए, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास को सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। इसी तरीके से ये सारे बने हुए हैं, ओके। तो यू कैन सी दिस फॉर्मूला इफ़ वी, ठीक है। तो इनको आप पहले वाले जो हमने क्वाड्रेंट का बनाया था कि कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, उससे कंपेयर करके यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस, ओके। नेक्स्ट वन, सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज। साइन ए प्लस बी, ये जो है ये आपके मतलब नए हो सकते हैं, ठीक है, जो आपने भी रीड किए हों नहीं की हों तो देख लेना। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से ए माइनस बी का होता है, बीच में माइनस आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। इस तरीके से कोस का देखोगे, कोस ए प्लस बी, तो कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसी तरीके से माइनस ए माइनस बी, देखो ए प्लस बी है तो बीच में माइनस, और ए माइनस बी है तो बीच में प्लस, इसका जस्ट अपोजिट। अब साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ओके। इसी तरीके से कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये चीज़ याद रखना। टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसी तरीके से साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 प्लस कॉस ए माइनस बी बाई 2। इनको हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट डजेंट मैटर, यू कैन अंडरस्टैंड दिस और लर्न इट, ओके। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी का भी हो, साइन ए माइनस साइन बी का भी हो सकता है, 2 कोस का हो जाएगा। इसी तरीके से कोस ए प्लस कोस बी का भी हो सकता है, और कोस ए माइनस कोस बी का भी हो सकता है, ओके। बाहर माइनस आ गया। इसी तरीके से कोस 2a का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 भी होता है, ठीक है, दोनों में है। और टेन 2a का वैल्यू भी होता है। ये जो फॉर्मूलेज हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कोस 2a का है, ये आ गया कोस ए प्लस कोस बी और कोस ए माइनस कोस बी साइन ए, ये वही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये आप देख सकते हो ना, तो यू कैन लर्न इट इजीली, क्लियर। और नेक्स्ट वन,
thank you. It is the these are the some basic formulas of mathematics that we can use in physics. Okay, if you have any kind of doubt, then you can ask me in WhatsApp group. Okay, thank you.